لیکن آج ہم اس کو اس طرح سے تقاریر کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بنایا. دو تین چیزیں ہماری. پہلی بات کہ آپ کو انفارم کریں، جیسے پادری کھوکر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ ضرورت کو ہے. ویسے سرکاری طور پر ہم 10 سال کے بعد سینسس یا مردم شماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس پہ ابھی الارمنگ چیز جو ہم سب کے سامنے آئی کہ 2017 میں جو کرسچن جو تھے ان کی تعداد 1.27% تھی، جو کہ پاپولیشن کے حساب سے بنی 207.6 سے 207.68 ملین. اور یہ تھی 2017 میں. لیکن اگر آپ پیچھے جائیں تو 98 میں 1998 میں آپ کی تعداد جو تھی وہ تھی 1.59% of the total population، اور آپ تھے 132 ملین. یعنی آپ 132 ملین سے آپ کی تعداد میں کتنا فرق آیا. اور ہمارا اپنا حق یہ ہے کہ جو فگرز ہمیں ملے وہ کریکٹ نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم کسی کو اس اسٹیج پر چونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہم بلیم نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا پرسیپشن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نام رجسٹر کرانے میں کوتاہی برتی ہے. اور کئی دفعہ ہمارے نام جو ہے جب دیکھیے نام کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے کہ جی کرسچنس کے نام اس طرح کے ہونے چاہیے یا اس طرح کے ہونے چاہیے. اگر کسی کا نام جاوید ہے تو جو ریکارڈ کرنے والا ہوگا جی مسلمان. جاوید نام ان اٹسیلف تو اسلامی نہیں ہے. تو اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن اگر پیٹر ولیم ہے، وہ مجھے جوک یاد آتا ہے کہ کسی نے اپنا نام پیٹر ولیم لکھا تھا. وہ جب اس کی آئی ڈی کارڈ اناؤنس ہوا تو کہنے لگے پیٹرولیم. وہ بیٹھے رہے، ان کو نہیں تھا. تو پھر اٹھ کے ذہن میں کرنے لگا یار یہ سچا بات ہے. اٹھ کے گئے تو کہا یار نام سے کوئی صحیح ہے کیا. تو ہمارے ناموں سے بھی واقعیت نہیں ہوتی کی. تو یہ تو خیر لائٹر ویٹ میں نے بات کی ہے، لیکن یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس کا اثر ہمارے آنے والی جنریشن میں پڑے گا، ہمارے نمبر میں، ہماری پولیٹیکل سینس پارلیمنٹ میں پڑے گا. ہمیں جو حقوق ملتے ہیں ایز اے مائنورٹی اس پہ پڑے گا. اور جو ہماری دوسری مائنورٹیز ہیں ہم نے دیکھا یہ ایک عام تجربے کی مشاہدے کی بات ہے کہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ہم سے آگے دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے نمبر رجسٹرڈ ووٹ ہم سے زیادہ. اور یہ ایک چیلنج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاسبانوں کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ ایک کمیونٹی کے ہیڈ ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے دوسری سے ایک دوسرے کے مقابلے میں. لیکن اگر آپ کے پاس 100 فیملی ہے، 50 فیملی ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو کوشش کرنی کہ سارے کے سارے رجسٹر، اور بلکہ اپنی لسٹ بنائیں اور ان سے پوچھیں اور ان کی رجسٹر کرانے میں مدد کریں. جہاں تک ہماری ڈائسس کی طرف سے ہمارا رول ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے ہر طریقے سے. سرکار سے بھی بات کریں گے. سرکاری جو آپ کو لیٹر دینے کی ضرورت ہے، اگر وہاں تک جانا ہے، اگر ان کی وین میں آنا ہے، جو بھی پریکٹیکل طریقے سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کریں. تو میں چاہوں گا کہ آج کا یہ جو سیشن ہے ہم اس کو، جیسے میں نے کہا تقریری مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں مائکرو فون ہو تو ہم آپ سب سے فرق ایریاز کے حساب سے آپ کے خیالات ضرور پوچھیں تاکہ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں، تاکہ جو اگلی ہماری بڑی کانفرنس ہے اس کی تیاری کرنے میں ہمیں مدد ملے اور اس میں ہم زیادہ انفارمیشن کے ساتھ، زیادہ اویئرنیس کے ساتھ، زیادہ زیادہ ڈیٹا کے ساتھ ہم آپ کو کے ساتھ شیئر کر سکیں، آپ کو چیلنج کر سکیں اور مل کے پریکٹیکل سٹیپس لے کے ہم
کچھ کر سکیں. آج کی جو بات چیت ہے سب سے پہلے تو ڈائسس آف رائیون چرچ آف پاکستان کو آپ کو اس فکر مند کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ مردم شماری میں اپنے لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ ہمارا جو ایگزیکٹ نمبر ہے وہ حکومتی سطح پر آئے اور جو بھی اس کی جو فائدہ ہماری کمیونٹی کو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. تو اس ساری آج کی جو میٹنگ ہے، آج کی جو کانفرنس آپ نے جس کا انعقاد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے کہ کلیسیا کے لیڈرز جس طرح آپ نے اپنی ساری کلرجی کو اور دوسرے چرچز کے نمائندگان کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ چرچ سے اور چرچ لیڈر سے ہم اس کمپین کا آغاز کریں. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے ضرور ہم بھی کیتھولک چرچ اپنے آلریڈی ہم اس کمپین کو مختلف پیرشز میں اور خاندانوں میں اس سے آگاہ کر رہے ہیں. بشپ جی بھی اس بات پر ہمیشہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں پر بات کرتے ہیں تاکہ ہماری مردم شماری میں جو ایگزیکٹ نمبرز ہیں ہماری تعداد کا وہ درج کروایا جائے. تو مزید ہم ارادہ کرتے ہیں اور اس کمپین میں ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں اور یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ چرچ آف پاکستان کا کام ہے یا پریسبیٹیرین کا کام ہے یا کیتھولک چرچ کا کام ہے بلکہ یہ تمام مسیحیوں کا کام ہے. اور جو پلیٹر اکثر دیے جاتے ہیں ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے، اس کا فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. تو اس لیے اگر ہم آج ہم اپنے لیے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسل کے لیے بچوں کے لیے جو اس ملک میں اپنا وقت گزارے. شہزاد صاحب. میرا نام شہزاد خرم ہے اور میں سیالکوٹ ڈسٹرکٹ سے ہوں. تھینک یو ماڈریٹر صاحب. بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس سے آپ نے ہم سب کو روشناس کرایا ہے اور میں اس بات سے بھی خوش ہوں کہ تمام جو ہمارے مسیح چرچز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں. پی سی بی بھی ہے، سی او بی بھی ہے، آر سی بھی ہے، کچھ پہلا دوسرے چرچز میں ہیں، کچھ این جی اوز بھی ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں ایک ہمبل سجیشن جو ہے اس مردم شماری کے لیے یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ what is the role of church, united church. اس مردم شماری میں what is the role of united church. اس میں جب سب یہاں پر بیٹھے ہیں تو میری سجیشن ہے کہ اگر یہاں پہ یا اس کے بعد آپ ایک ورکنگ گروپ ڈالیں جس میں سی او پی کی 8 ڈائسس ہے، 8 بشپ ہیں، وہ ان کے فوکل پرسن بن جائیں، ساتھ پی سی بی سے لوگ آ جائیں، آر سی سے لوگ آ جائیں اور یہ جو کانگریگیشنز ہیں وہاں پہ اس ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جائے. اس ڈیٹا کو جو وہ کرتے ہیں اس سے میچ کیا جائے. جو ڈفرنس ہے وہ جو بھی ہمارے پاس ریکارڈ آ جائے گا وہ ہمیں ڈفرنس کا بھی پتا چل جائے گا کہ ویئر از دا ڈفرنس. تھینک یو ویری مچ. اور میں بشپ ناصر صاحب کا عادی صاحب کا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام ایلڈر لوکس جاوید حمید ہے. میں کلچر آفیسر ہوں ایڈوکیشن پنجاب کے آفس میں، آئی ٹی برانچ کا انچارج ہوں اور پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان کا وائس ماڈریٹر ہوں. یہ بہت اہم ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں دفاتر میں بھی ہمیں کافی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری پوسٹیں جو ہیں وہ ایسی خالی چلی جاتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اندراج ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات جب ہمارے جو کرسچن شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کا اندراج نہیں کیا جاتا ناظرہ کے آفس میں، اور پھر ہم انہیں اپروچ کرتے ہیں اور اپروچ کر کے تو پھر ان کا اندراج کرتے ہیں کیونکہ وہیں سے فیملی کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ پوائنٹ کو پلیز نوٹ کیا جائے کہ جب کوئی ہمارے جو کرسچن شادی کرتے ہیں تو ان کو بھی ناظرہ اس میں اندراج کیا جائے تاکہ آگے جو ان کا سلسلہ ہے فیملی کا وہ زیر غور آ سکے.
سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے قومی مدعے پر ہم سب کی توجہ دلائی ہے. مختصر بات یہ کروں گا، میرا طلب بھی پریسٹیجنگ چرچ آف پاکستان ہے کہ ہم نے بھی جوہان آباد میں اس حوالے سے ایک کمپین کا آغاز کیا، اور ہمارے بھائی ساجد کرسٹوفر جو ان دنوں کمپین بھی کر رہے ہیں اپنے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے. سو ہم نے بیشتر اس میں 2-3 چیزیں ڈسکس کی. پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہمارے بھائی جوید حمید نے کہا کہ یونین کونسل میں ہمارے جو نکاح نامے ہیں وہ جلدی رجسٹر نہیں ہوتے، وہ کوئی نہ کوئی ہنڈرنس پیدا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسائل پیدا کرتے ہیں، پھر انہیں اپروچ کرنا پڑتی ہے، برائٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ رجسٹر کرتے ہیں. یہ پلیز ضرور نوٹ فرمائیں کہ یونین کونسل میں نکاح ناموں کا اندراج جو ہے وہ ہمارا آسان ہو سکے. دوسری بات، ہم نے تو اپنے پلیٹ فارم سے اس بات کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ دی ہے کہ 60 دن کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو 60 دن کے اندر یونین کونسل میں اندراج کروائیں، نکاح نامہ 60 دن کے اندر اندراج کروائیں، اور 1 مہینے کے بعد یونین کونسل کا جو ریکارڈ ہے وہ مناظرہ میں خود بخود چلا جاتا ہے. یہ ان کا ایک پروسیس ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شناختی کارڈ کے حوالے سے میں سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ آج کل بھی جوہان آباد میں ہم گاڑیاں منگوا رہے ہیں، وہ ایک بڑی کمیونٹی ہے. کرسمس سے پہلے بھی 5 دن شناختی کارڈ کی گاڑی آتی رہی، اور وہاں پر ہم پولیسیوں میں پھر اناؤنس کرتے ہیں اور لوگ جا کر اپنا شناختی کارڈ بنواتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں، نیشنل بنتے ہیں. جب تک ہم اس کو گراس روٹ لیول پر کمپین کو نہیں چلائیں گے، لوگوں کو نہیں اویئرنیس دیں گے کہ جا کر کم از کم بھائی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، نیشنل تو بنے. وقار ہے، ڈائسز آف رائیول کا خادم ہوں. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حقوق، لیکن کبھی کبھی ہمارا جو زور ہوتا ہے وہ حقوق پر چلا جاتا ہے، فرائض پر نہیں. یہ دونوں لفظ انٹرلنکڈ ہیں، حقوق اور فرائض. اب گفتگو جتنی بھی ہو رہی ہے بہت اچھی گفتگو ہے، کیونکہ بائبل میں دینی، سماجی اور سیاسی قیادت میں جب بھی کسی بات کی نشاندہی کی ہے تو وہ دینی باتوں پر ضرور کی ہے، لیکن اس کے ساتھ معاشرتی مسائل کو بھی انہوں نے نشاندہی کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرائض کی جہاں تک بات ہے، حقوق پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. فرائض کی اگر ہم بات کریں تو فرض ہر ایک شخص کا ہے جو یہاں پر مدعو ہے. یہ ہماری چونکہ پہلی نشست ہے، لیکن ماضی میں بہت سی آوازیں اٹھتی رہی ہیں. اس ضمن میں بہت سی نشستیں ہوتی رہی اور ان نشستوں کا ہم بھی حصہ رہے ہیں. لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائسز آف رائیول کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے جہاں دینی مسائل اور معاملات ہیں وہاں انہوں نے معاشرتی مسائل کی نشاندہی کی ہے. تو یہ نہ ہو کہ یہ جو باتیں ہیں حقوق کی بات کرتے کرتے ہم بند دروازوں تک یہاں پر بیٹھ کر چلے جائیں اور کل دوبارہ اس کے اوپر کوئی تباہ آزمائی کر سکے، کیونکہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ہماری شناخت کا مسئلہ ہے. پہلے تو ابھی آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ شناخت اور شمار دونوں کر دیں. ابھی کچھ دوست بات کر رہے تھے کہ آئی ڈی کارڈ ہماری شناخت ہے. مردم شماری میں اندراج ہمارے شمار ہے کہ ہم ریاست کا حصہ ہیں فرض کی سے. اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ دوستوں نے مختلف رائے دی، کبھی 2-4 سجیشن ہے. ایک سب سے پہلے جو انہوں نے چرچ کے ڈاٹا بیس بنانے کی بات کی، یہ بڑا ضروری بات ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چرچ کا ڈیٹا لائبل کیسے ہے. آپ لکھ لحاظ سے فارم بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ لائبل کیسے ہے. ناظرہ یا دوسرے ادارے کیسے مانتے ہیں راستے ادارے کہ آپ کا ڈیٹا لائبل ہے. اب چونکہ آج کل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایپ ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. بڑا ایزی کام ہے. آپ ایک ایپ بنائیں، ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، اپنے فون میں کرے، اپنے خاندان کا اندراج کرے. اور دوسری بات یہ کہ اس اندراج میں 1 دن کا بچہ جو ہے وہ بھی اندراج ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جی 18 سال کا بندہ ہے تو اس کو اندراج کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں 4-5 بچے ایسے ہیں جو 1 سال کا ہے، 1 ماہ کا ہے، 2 ماہ کا ہے، اس کو ہم اندراج نہیں کرتے. بیسکلی شمار بڑا ضروری ہے.
हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने असली का कोई हमें ख्याल है वो 1 मिनट चोरी करी हम ये क्या है कि इग्नोर कर देते हैं। इस तरह हजारों लोग जो है, लाखों लोग जो है वो शुमार का हिस्सा नहीं बनते। तब इसके लिए जरूरी है कोई ऐप डिजाइन की जाए जिसमें हम काम करें IT के वजह, ताकि वो हम पूरे पाकिस्तान में कर सकें, बल्कि बाहर की दुनिया में जो लोग बैठे हैं पाकिस्तानी, वो भी उस ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने फोन में और वहाँ पे अपना इंतजार करें। उसके नीचे फॉर्मेट बना है, खाना बनेंगे 8, 10, 15 जो भी है उसमें आ जाएगा। दूसरी बात यह कि अवेयरनेस की हम बात करें, आजकल चूंकि डिजिटल मीडिया है और बहुत सारे दूसरे जो टूल है उस पर काम करने की जरूरत है। फर्ज किया हम लोग जो है एक कोई मल्टीमीडिया कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। हम एक ऐसा ड्रामा बनाए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि ये आपका शुमार क्यों जरूरी है, आपकी अहमियत क्या है, एक फर्द की हैसियत क्या है, आपके वोट की अहमियत क्या है, ये जो चीजें इसको सिखाने की जरूरत है। वो ड्रामा क्यों हम मल्टीमीडिया के थ्रू पूरे पाकिस्तान में दिखा सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू पूरे पाकिस्तान में दिखा सकते हैं, हर बंदा उसको देख सकता है। और जैसे हमारे चर्चेज है, पैरिशेज है, तो वो आपकी जो पादरी साहबान है, फादर साहबान है, एल्डर साहबान है, उस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। वो आप ड्रामा अपने चर्च में दिखा सकते हैं, चौराहों में दिखा सकते हैं, जो इलाहाबाद है किसी चौक में आप दिखा सकते हैं। आप एक उसके लिए गाड़ी भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ कंपनी जो है नस्ले वाले बड़ी बड़ी कंपनी है वो गाड़ियां डिजाइन करती हैं, फिर वो जाती हैं, वो जाके मुख्तलिफ एरिया में घूमती हैं, उस पर स्टिकर्स लगे होते हैं, लोगोस लगे होते हैं, और वो कुछ आर्शी मटीरियल जो है वो भी दे रहे होते हैं। लोगों को बांट करते जी फोल्डर कॉम्प्लेक्स लीफलेट्स, ताकि लोग उसको पढ़ें और देखें कि हमें इस पर क्या करने की जरूरत है। ये एक बड़ा अहम मसला है। और तीसरा ये है कि हम समझते हैं कि चर्च को अपने हम हर साल ईस्टर मेला, क्रिसमस मेला करते हैं, अगर एक शुमार मेला रख लें, इकट्ठा करने लोगों को आगे सारी कलीसिया आ जाए, वहाँ आपको छोटे छोटे स्टॉल भी लगा लें, थोड़ी सी अवेयरनेस दे लें, एक दो ऐसे बंदे को जो इस पे अवेयरनेस दे सकता है मतलब शुमारी के बारे से, वहाँ पे आपको चाय पानी का बंदोबस्त कर दें, आप लोगों को एक प्रिंटिंग मटीरियल फोल्डर लिफ्ट बांटे लोगों को, ताकि बजाय कि पादरी हर घर में जाए या फादर हर घर में जाए, ये शायद मुश्किल है, मुमकिन नहीं। तो मेरा ख्याल है इस तरह की एक्टिविटी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हासिल हुआ हूँ। सबसे पहले तो मुबारकबाद मॉडरेटर साहब, आपको अहम तरीन इशू का जो है वो आपने आज इस मीटिंग को बुलाया है। आज से तकरीबन 2 महीने पहले मेरी काशिफ नवाब साहब से ही बात हुई थी और उन्होंने मुझे ये हदायत कह ले या आगाही कह ले, उन्होंने कहा था कि पाजी साहब ये एक मार्च में हो रहा है, हुकूमत कर रही है मरदमशुमारी, तो आप इस पर कोई एक मीटिंग बुला। मैंने अपने मॉडरेटर आमिर साहब से और पाजी डॉक्टर मजीद एबल साहब से इस पर बात की। डॉक्टर साहब चूँकि मुझसे बाहर हैं, लेकिन उनके इजाज़त से फिर मैंने इस पर कुछ काम किया है। मैंने 15-20 पेजेस पर एक रिसर्च वर्क किया है, वो चंद दिनों तक जो है वो सामने आ जाएगा। और लेकिन मकसद ये है, अर्शद साहब आप चूँकि हमारे बड़े हैं और हम चूँकि हमेशा अपने बड़ों के पीछे और उनकी रहनुमाई में चलना पसंद करते हैं, तो आपने ये इनिशिएटिव जो लिया है, प्रेस मटीरियल चर्च जो है वो आपकी ज़ेरे क़यादत जो है इसमें भरपूर कंपेन करने में हर लिहाज से जो है वो आपकी मुआवनत फरमाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 जून 2022 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियतें हैं उनका कुल वोट जो है वो 39,56,336 और इसमें 20,73,983 ये हिंदू वोट हैं और 17,32,000 समथिंग ये क्रिश्चियन वोट हैं। एक वक्त था कि जब हमारे मसीही एक मिनिस्टर शुमारियात थे और स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो एक हिंदू थे, लेकिन पता नहीं क्यों मसीहियों की आबादी कम हुई, हालांकि वो मिनिस्टर थे, लेकिन हिंदुओं की आबादी और वोट जो है वो ज़्यादा हुए। मैं इस पे ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हमने तवज्जो से काम नहीं किया जब हमारे पास कोई इख्तियार होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये चर्च की बात है, ये सिर्फ एक चर्च की बात नहीं है या सिर्फ चर्च ही इस एक बड़े काम को जो है वो कर नहीं सकता। मैं चूँकि NGO के साथ भी काम करता हूँ, सियासतदानों के साथ भी और सोशल एक्टिविस्ट लोगों और मीडिया के लोगों, ये सारे अहम तरीन लोगों को जब तक हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते।
एक नेटवर्क है, वसाइल है पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो जो लोग हैं वो चर्च हैं। सो चर्च को इसको लीड करना चाहिए। फिर एक वक्त होगा एनजीओ इसमें हमारी अहम तरीन रोल अदा कर सकते हैं, फिर मीडिया का है और फिर पॉलिटिशियंस का है। जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, मैंने देखा ये मतलब बड़ी अच्छी टॉक चल रही है, लेकिन बात एक ही पॉइंट है कि हमने मर्दमशुमारी में हिस्सा और कैसे भरना है। इतनी लंबी गुफ्तगू से हल नहीं निकलना ही है कि हमने भरना कैसे। ऐप्स जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो तो इस्तेमाल कर लेंगे, कंप्यूटर का और दीगर, लेकिन जो तलीम का जहाँ फुकदान है वो कैसे इस्तेमाल होगे, वो कैसे वो इसको इस्तेमाल करेंगे और कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा। ये तो मैं समझता हूँ हमारे पादरी साहिबान और फादर साहिबान और दीगर जो चर्चिस के अपना हैं अपना पादरी और फादर साहिबान वही वहां तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये जोसेफ क्लोदी में बहुत फुकदान है, आप उसी को आप बाहर निकाले तो वहां से पता नहीं कितने 100 खानदान होंगे जो मतलब के रजिस्टर नहीं हुए होंगे। तो लाहौर से ही मैं तो समझता हूँ पहले काम करने की जरूरत है, और दीगर शहरों के जो उनसे हैं वो इसी तरह अगर करते रहे तो मेरा ख्याल आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन वो ये कि जहाँ पे देखें हर जगह प्रेस्बिटेरियन चर्च भी है, चर्च ऑफ पाकिस्तान भी है, कैथलिक का चर्च भी है, और वो सियासतदान भी वहां पे मौजूद हैं। अगर ये सारी मिलके वहां पे अगर टीम बन जाए, और टीम जिस तरह वो अपना आती है गवर्नमेंट लेवल पे टीम आती है, यही टीम अगर उसके साथ मिले तो मैं समझता हूँ घर घर का विजिट भी बड़ा आसानी हो सकता है। इससे कौमें तरक्की करती हैं, और मैं बिशप साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये झंडा उठाया है, और रायविन डाशिद ये शर्फ हासिल हुआ है कि आज हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है, और ये आइंदा जो होगा उसमें चर्च ऑफ पाकिस्तान की तमाम डायसिस, तमाम डिनोमिनेशन जो बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन हैं हमारे मुल्क में, बिशप साहब ने मुझे बताया है कि उनको भी दावत देंगे। ये काम जो है हालांकि ये हमारे सियासी लीडरों का काम है, लेकिन उन लोगों ने अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सके। अच्छा जी, सारे मुकर्रीन ने, बिशप साहब ने और बाकी भी जो आपने इनपुट्स दी हैं रिगार्डिंग द सेंसस टाइम, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम नेशनल उस पर ऊपर करें, लेकिन जो मेरे ख्याल में कोर इशू एक है वो है सेल्फ इन्यूमरेशन, कि हमें अपनी गिनती खुद कराने की जो एक ज़रूरत है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें फॉर द लास्ट 40-45 ईयर्स जो हम अपने इश्यूज के ऊपर हम बात करते हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू पॉलिटिकल मसले। हमारे लेजिस्लेशन की अगर हम बात कर लें, मिसयूज ऑफ द ब्लास्फेमी लॉ है, पोस्ट कन्वर्जन है, जॉब डिस्क्रिमिनेशन है, जॉब कोटास का मसला है, एजुकेशन का मसला है हमारा कोटास का। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिनका सोल्यूशन पॉलिटिकल है, इट्स नॉट सोशल उसमें। सो टाइमिंग मेरे ख्याल में ज़रूरी है, एंड इट्स मेरे ख्याल में हाई टाइम अब कि हम इस चीज़ को रियलाइज करें कि जब तक हमें अपने नंबर्स खुद नहीं पता होंगे, हमारे पास अपना कंप्लीट डाटा नहीं होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि कौन कौन से मुल्क की पॉकेट्स में क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो आगे ये जो साल है, आप सारे यू आर अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारे मुल्क में चल रही है, और ये इस टाइम पे क्रिटिकल एक वो मामला है कि जिसके अंदर अगर हम इफ वी आर एबल टू पुल थ्रू ये वाली सेल्फ इन्यूमरेशन की चीज एज अ कम्युनिटी, तो आप ये देखें कि हमारा कितना ये इम्पैक्ट हो सकता है पॉलिटिक्स के ऊपर। हमारे वोट्स जो हैं दे मैटर। आपकी रियासत
वो भी इसी चीज को देखती है कि कौन सी कम्युनिटी स्ट्रांग है, हिंदूज किस तरह से आ गए हैं हर एक चीज में। आपके नेशनल कमीशन के जो है चेयरमैन वो हिंदू है। जब भी ऐसी कोई कमेटी बनती है जिसमें माइनॉरिटीज का होना होता है तो दे आर ऑल द टॉप पोजीशंस इट इज हिंदूज, इट इज नॉट क्रिश्चियंस। सो मच हो के हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जब सिलेक्शन वो करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो हिंदूज जो है वो अब आ गए हैं पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे, और क्रिश्चियंस जो है उनको अब प्रायोरिटी कम मिलती है। सो इस चीज में अगर हम ये चीज कर रहे हैं सेल्फ इन्यूमरेशन, मैं बार बार सेंसस तो एक नेशनल वो चीज है, लेकिन सेल्फ इन्यूमरेशन वो अगर हम कर पाए, एक ऐसा मैकेनिज्म बना पाए जिसके अंदर चर्च का एक लीडी किरदार है। सबसे बड़ा नेटवर्क डाटा कलेक्शन का इट इज विद द चर्चेस, इट इज नॉट विद एनी एनजीओ और एनी अदर सेक्टर। सो वो चीज नंबर आपके पास आ जाए तो फिर चर्च हमारी पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन हो, वी कैन एंगेज विद द गवर्नमेंट और विद द रादर द स्टेट, और हम उनको बताएं कि भाई हमारे जो मामला है, आप हर हमारे से वादे कर देते हैं, वोट हमारे ले जाते हैं, हमारे लोग रैंडम वोटिंग कर रहे होते हैं, उनको किसी को एहसास भी नहीं कि वोट की क्या इम्पोर्टेंस है और हम किस तरह से स्विंग वोट भी कर सकते हैं। सो जो हमारे मुतालबे पूरे करेगा, जो हमारे लिए लेजिस्लेशन करेगा, ये एक दरीना मसला चलता आ रहा है और हर साल हर इलेक्शन में हम वी जस्ट फॉरगो दिस। सो नाउ इज द राइट टाइम। Elections most probably they are going to be held later this year. So हमारे पास we have time. गवर्नमेंट की कैंपेन के साथ साथ जो कि बहुत जरूरी है कि हम अपने लोगों को अवेयरनेस दें, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में जरूरी है कि हम अपनी डाटा कलेक्शन जो है वो पैरेलल जरूर उसको चलाएं। ये कमजोरी रहती है ना कि कुछ लोग बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते, बड़े लिखे नहीं है, या अगर ये सोशल मीडिया में तकरीबन बहुत बड़ी तादाद है जो इन्वॉल्व इंटरेस्ट रहती है, लेकिन फिर भी आपको कहने का मकसद जो है ये समझाओ कि वो भी करें और दूसरों के लिए भी हम रास्ता रखें कि उनको किस तरह से हमें इन्वॉल्व करना है। चर्च का ये आज भी मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है और हमें वाकई इसको संजीदगी से लेना है। विशाल, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसपे आपने आज इसको शुरू किया है और हमारी कम्युनिटी के सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये भी एक खुशाइद बात है। और जैसा कि पाजी साहब ने यहाँ पे जिक्र किया कि इस पे चौधरी नईम शाकर जब थे, बिशप सैमी थे, मुख्तलिफ लोग थे, वकला थे और NGOs के लोग भी थे, इस पे बारहा मरतबा बात हुई, जो शादियाँ हैं उनको रजिस्टर करने की बात हुई, उसके बाद जो लोग हैं रजिस्ट्रेशन की, वोट की कई दफ़ा बात होती रही, लेकिन उसको बंद किया जाता रहा, मतलब उस पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अभी जो मेरा कंसर्न खास तौर पर है वो ये है कि लड़कियों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको हमेशा से इग्नोर किया गया। और जब लड़कियों की रजिस्ट्रेशन होती है, लड़कियों की आमतौर पर रजिस्ट्रेशन खास तौर पर जो हमारा देहाती इलाके हैं वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती लड़कियों की, और स्लम्स में भी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी बेटियों की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पहले हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रेशन को माना जाता था, लेकिन अभी यूनियन काउंसिल में ही रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर उसका बे फॉर्म और बाकी जो फैमिली का सारा रजिस्ट्रेशन है उसमें बच्चों का आ जाता है। लेकिन ये बात है पढ़े लिखे लोगों की। अभी जबकि चर्चिस में अभी जो बहुत सी सजेशन आई है बहुत अच्छी, हम चर्चिस में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, और मैं बहुत सारे सभी तकरीबन से भी चर्चिस में डायसिस की जाती हूँ, और उसमें जाकर मेरा कंसर्न ये होता है कि मुझे सब पादी साहबान बताते हैं कि हमारे कलीसिया में 200 फैमिली हैं, 20 हैं या 25 फैमिलीज हैं, और इसी तरह से उनको पता होता है कितनी फैमिलीज हैं और ये भी पता होता है कितनी बच्चियाँ और बच्चे हैं। और ये जो भी बात आई थी कि अगर एक दिन का बच्चा भी उसको भी रजिस्टर किया जाए, क्योंकि सेंसस में उसका नंबर भी है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। क्योंकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब रिसर्च कर रही थी तो ये बहुत पीछे की बात है, जब से ये काम मैं कर रही हूँ, तो उसमें जब बात आ जाती है तो मर्डर हो जाता है, रेप केस होता है और उसके किडनैपिंग हो जाती है, जब बच्ची रजिस्टर नहीं है तो आप उसके राइट के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि पुलिस स्टेशन में हर जगह पर आपको डाटा देना पड़ता है कि अगर कोई बच्ची के साथ और उसके अलावा जब विमेन राइट्स का जो इनहेरिटेंस पे विरासत के लिए कानून है, उसमें जब लड़कियों को कहा जाता है तो आमतौर पर विरासत सिंध और पंजाब में खास तौर पर
विरासत की वजह से लड़कियों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाती ताकि वो अपने हिस्सा को क्लेम ना कर सके। तो हम इस बात को हुकूक और फ़राइज़ दोनों ही साथ चलेंगे। हमें अपनी बेटियों को, बहनों को और बच्चियों को सभी को रजिस्टर करवाना ताकि हम खुद भी उनके हक का ख्याल करें और दूसरे लोग भी करें। मेरा नाम नासिर जमील है और गुजारिश ये है कि बिशप साहब, अभी यहाँ बात हो रही है कि हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें, लेकिन क्यों करें ये हमें पता है। हम इस पे बात कर रहे हैं, ये बात उन तक पहुंचाएं कैसे जिनके लिए कर रहे हैं। आम लोगों को ये पता चले कि उनको क्या फायदा होगा। की बात ये, लोग करवाते क्यों नहीं है? करवाते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसका मुझे या मेरी आने वाली नस्ल को क्या फायदा होगा। जब आप किसी को कहें कि आप अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आए, आपको एक आटा जो है, आटे का तोड़ा जो है वो देंगे, तो लोग पूरे मोहल्ले के इकट्ठे करके ले आते हैं। जब हम कहते हैं कि जी आप लाइन में लगे या अपना नाम लिखवाने के लिए आए, तो आप कोई भी वोट लेने वाला कहते हैं मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, तो पूरे मोहल्ले छोड़े, मतलब वो जो पीछे कहीं गांव में मरे भी होते हैं उनके भी ले आते हैं। हम आज तक अपने लोगों को ये बावर नहीं करा सके कि वो मर्दमशुमारी कराएं क्यों। तो मेहरबानी करें कि इस तरह का कोई जो है मैकेनिज्म बनाए, और खासतौर पर पास्टर्स हैं, इनकी बात जो है वो खुदा के बाद लोग सबसे ज्यादा इन्हीं की मानते हैं। तो ये पास्टर्स जो है अपने सरमन में उनको ये सुनाएं और समझाएं कि वो क्यों करवाएं। जब वो समझ जाएंगे कि वो क्यों करवाएं तो फिर ये करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो लाइनों में लग के कराएं। सेंट थॉमस डायोसीस ऑफ प्राइवेट चर्च ऑफ पाकिस्तान से हूँ और मैं समझता हूँ कि तकद्दस बाब ने ये इंतहाई अहम मुद्दा जो है उसे उठाया है ताकि इस पर बातचीत हो सके। सिर्फ मैं सजेशन तक रहूँगा। तो उसमें पहली बात तो ये है कि चर्च जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये सब कुछ कर सकता है, इसलिए पासबान जो है वो इस काम में अहम रोल अदा कर सकते हैं। अभी पादी विल्सन बकार ने कहा कि उन्होंने अपने चर्च की भी कि मर्दमशुमारी जो है उन्होंने की है, रजिस्ट्रेशन की है, बड़ी अच्छी बात है। ये एक अच्छा तरीकाकार है। अगर हर पासबान इस जिम्मेदारी को लेता है तो इस तरह से बहुत सारा काम आसान हो सकता है। तो उसमें भी सब मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर हम ऐप की बात करें या फॉर्म की बात करें तो मेरे ख्याल में वो काम जो है ना वो रह जाएगा, क्योंकि ना तो मजहबी लीडरशिप जो है वो इतनी जिम्मेदारी के साथ उस काम को करेगी और ना सियासी जो है वो पहले नहीं करती। तो इसके लिए अगर हम चर्च फोरम पर जो है, जैसे आप प्राइवेट डायोसीस को रिप्रेजेंट करते हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मैनेजमेंट जो है वो ऑर्डर पास कर दे, जिस तरह से हम बैप्टिज्म का रजिस्टर बनाते हैं, जिस तरह से हम निकाह का रजिस्टर बनाते हैं, रजिस्टर बना के हम पासपोर्ट को देंगे, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और हमारी डायोसीस का रिकॉर्ड जो वो जमा होना ही होना है। तो उससे ये है कि हर पासवान जिम्मेदारी के साथ उस काम को करेगा और उससे जो है कम से कम हमारे डायोसीस की जो है जो भी नंबर्स है वो हमारे सामने आ जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा साहब कि अभी बात की गई पैरा चर्चिस की, बात की गई कि मेनलाइन चर्चिस के साथ पैरा चर्चिस को इन्वॉल्व किया जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पैरा चर्चिस के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग की जाए ताकि हर कोई अपने फोरम पर जो है वो अपने नंबर्स जो है कलेक्ट करे, अपना डाटा कलेक्ट करे, ताकि फिर वो एक बड़े लेवल पर जो है उसको देखा जा सके। बिशप आजाद मार्शल साहब और तमाम मसीह के बदन में कलीसिया में मेरे बहन भाइयों, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज है और बिशप साहब के लिए मुबारकबाद इस इनिशिएटिव के लिए जो लिया। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में इस इनिशिएटिव के लिए बिशप साहब आपको बहुत मुबारकबाद। और मसीह खुदावन की दुआ दिल में आ रही थी अभी 17वें बाब यूहन्ना की इंजील में 3 मरतबा जब खुदावन ने फरमाया कि हम एक हों, और सजेशन के तौर पे हदफ या चैलेंज कोई भी हो उसको अचीव करने के लिए अपनी फौज का जो है वो मुत्तहिद होना बड़ा ज़रूरी है। अगर अपनी फौज मुत्तहिद नहीं तो दुश्मन को हम शायद शिकस्त ना दे सके और अपना हदफ भी हासिल ना कर सके। बड़ा मौजू जो कलीसिया के इत्तेहाद का है, ग्लोबली यूनिवर्सली बड़ा मौजू है
लेकिन एक छोटी सी बात, अक्सर बिशप साहब के ज़ेर तरबियत भी, ज़ेर तालीम भी रहे, मसीह का बदन कलीसिया का एक होना रुए ज़मीन पर। शायद ग्रेट शिज़म और रिफॉर्मेशन से पहले हम शायद सोच ना सकते हो, आज भी सोच नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है डिनोमिनेशनलिज्म से बाहर आना। हकीकत जो सच बात है, हमारे जब मफादात आ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर हम अपने अपने ऑर्बिट से बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन ईमान की आंख से देखना, मसीह का बदन एक है, एक होगा, ईमान की आंख से देखना ये मुमकिन लगता है। दुआ में ठहरना, हम एक होके आगे बढ़ें, और ये जो हदफ है मरदमशुमारी का, चर्च के लेवल पे हमें अपने लिए जो भी डेटाबेस करना है और उसका तरीकाकार जो भी हो, फॉर्म हो, ऐप हो, वो हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस वक्त हमारा असल टारगेट रियासत पाकिस्तान का जो रजिस्टर है उसमें खुद को रजिस्टर करना है, और उसके लिए शख्सी तजर्बे की बुनियाद पर भी, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, डिस्ट्रिक्ट रायवंड में हमारी 3 यूनियन काउंसिल्स हमारे इस एरिया को भी लगती है, शख्सी मुलाकात भी हुई, और जो हमारा डिपार्टमेंट है रिलीजियस अफेयर्स का, वहाँ पर भी शख्सी मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक लाइसेंस जारी होते हैं, और यूनियन लेवल पर भी। यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरीज हैं, तीनों सेक्रेटरीज, उनका यही बयान हम सर्वे भी कर लें, आपकी कम्युनिटी ना तो बर्थ को रजिस्टर करवाती है और ना ही शादी को। मेरे ख्याल में ज्यादा गलती हमारे अपने एंड पे है। और काफी देर से यहाँ पे जो बातें चल रही है उसके सिलसिले में मैं एक सजेशन बस ये देना चाह रही हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पे मरदमशुमारी होती है, डोर टू डोर, जैसे भी भाई ने बात की, हम लोग उस लेवल पे क्रिश्चियन लोग मिलकर क्यों नहीं इस तरह की मरदमशुमारी कर सकते। हम जोन बना के अपने सारे जो है एरिया वाइज जोन बना के डोर टू डोर जाके अगर हम लोग मरदमशुमारी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमारा चेक एंड बैलेंस रहता है। अगर हम ऐप की बात करते हैं तो उसमें हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो चर्चेस में नहीं जाते, अपने घरों में ही रहते, तो चर्च लेवल पे आप उनकी मरदमशुमारी कैसे करेंगे? उनको कैसे आप लोग तो कह सकते हैं कि जो चर्च भी नहीं जा रहे हैं, जो पढ़ा भी नहीं रहे हैं, जो पढ़ते भी नहीं हैं, जिनके पास कोई ऐप भी नहीं है, उनकी आप कैसे मरदमशुमारी करेंगे? वो डोर टू डोर जाके ही हमारा मसला हल हो सकता है। इसमें हम अपने चर्चेस की यूथ को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ हम अपना एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने सर्वे फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनसे सारा हमारा डाटा जो है एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो। वालिद साहब ने आप सबके सामने डेटा भी शेयर किया था 98 का 2017, तो मैं आपको उससे पीछे लेके जाऊंगा। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो फिर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की तादाद 23% थी। आज हम ओवरऑल 4% रह गए, और उसमें भी जो क्रिश्चियंस हैं वो 1.27 जैसे आप सुन चुके हैं। तो सर मेरी तरफ से ये सजेशन है कि वी शुड वर्क ऑन 2 फ्रंट्स। जब आप नेक्स्ट कंसल्टेशन रखें तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट सेंसस कमिश्नर को जरूर इनवाइट करें। उनसे परमिशन ही हमें चाहिए, हमें सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना है कि हम एक पैरेलल एक्सरसाइज करेंगे अफराद शुमारी के लिहाज से। इसका दूसरा फायदा ये होगा, जो इनुमरेटर्स हैं गवर्नमेंट के, वो हमारे काम में मुदाखलत है या हमारे लोगों को वो तंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह हुआ था 2016 में एनसीजेपी ने इस किस्म की एक पैरेलल एक्सरसाइज की थी, और जो उनके वॉलंटियर थे उनको सेंसस जो इनोमिनेटर थे उनकी तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कि आप ये गैर कानूनी काम करें, ये हमारा काम है। तो इसका ये फायदा होगा। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल सजेशन जो मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ, ये मेरी तमाम हमारे यहाँ पे पास्टर हज़रात मौजूद हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, कि हम सिर्फ अफराद शुमारी तक खुद को लिमिट ना रखें। अगर ये मौका हमें मिल रहा है और एक वर्किंग कमेटी बन रही है जो कि हमारी तादाद के हवाले से और या रजिस्टर में इंदराज होगा, तो व्हाई नॉट गो बियॉन्ड इट। हमारे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम यहाँ से अपना लिटरेसी रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमें फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। ना सिर्फ लिटरेसी रेट, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे लोग जॉब्स किस किस्म की कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। और लास्टली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स बिलीव। और हम ऑफर करते हैं डायसिस ऑफ रायवेंड, हमारा जो ऑफिस है, हम अपने आप को ऑफर करते हैं कि कुछ सजेशन जो आ गई हैं, कुछ आप हमें इस हफ्ते अगले हफ्ते भेजते रहें, ताकि अगली कंसल्टेशन पर हम कोई वर्किंग ग्रुप भी बनाएं, हम कोई जिम्मेदारियां भी एक दूसरे के साथ शेयर करें और कुछ करके भी दिखाएं। लेकिन अगर मैं समझ रहा हूँ कि आप में से तकरीबन सबको कुछ ना कुछ लिख के हमें
हमारी भी हौसला अफजाई होगी और हमें अपनी रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए भी आसानी होगी और वो आप ही की होगी। जो रिपोर्ट मुरतब होगी वो आपकी रिपोर्ट होगी और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ सकें। ये एक तरीका है। अभी भी दुआ के बाद हमने चाय का बंदोबस्त किया है, आप हमारे साथ चाय पिए और उस दौरान भी एक दूसरे के साथ अपने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करें और अपने ख्यालात भी और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है हम एक दूसरे को बताएं और फिर हम तक उन ख्यालात को, उन सजेशंस को, उन मुफीद मशवरों को हम तक पहुँचाएं। तो आइए हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज हमारे दिल में इस जरूरत की तरफ हमें वादा किया, कायम किया और यहाँ पर इस ग्रुप में सब में हम जो हम एक इंटरेस्ट देखते हैं कि सारे चाहते हैं कि हमारी जो शुमारियात है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो तादाद है उसके सही हो। हम दुआ मांगते हैं कि तू हमारी मदद कर, हमें वो ख्यालात दे जिसके जरिए हम बेहतर नताइज हासिल कर सकें, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो फॉर्म्स हो, चाहे वो डोर टू डोर हो, जो भी हम करें उसके नतीजे में हमारे पास एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आए जिसके जरिए हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें और उनके हकूक के लिए हम बोल सकें, जद्दोजहद कर सकें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे और के नाम से। आमीन।